Good evening and welcome, and Jai Shri Ram to all dear viewers. Viewers, today was magical. The sheer intensity of emotion across the country in the run-up and during and after the Pran Pratishtha cannot be described in words. It just can't. Whether you were watching this by yourself or with your family or your friends, the moment of the consecration was an emotional one, a very personal one, wasn't it? All of us, especially in our newsrooms today, we all felt, and across the country, a sense of personal joy, of achievement, of fruition, and in most, a quiet elation that we were witnessing what so many tried to stop. The Ram Mandir in Ayodhya from becoming a reality. All of us also had our own experience to share in our minds, moments when we were made to feel guilty about being proud Hindus, apologetic about being proud Hindus, and told that pride in Hinduism, a vocal pride in Hinduism, is a very communal thing to do in the first place. For all of us, therefore, who have seen that India, where a determined attempt was made to downplay Hinduism, ridicule, stereotype, and vilify Hinduism, whether directly by attacking Hinduism or attacking the phrase Hindutva. Hinduism and Hindutva are the same. Hindutva is nothing but a manifestation of Hinduism. For all of us who have seen the abuse of Sanatan Dharma, who have lived through that India, today was a moment of collective celebration. Hindus everywhere and even non-Hindus, we identified with what the Prime Minister said when he said that the Kal Chakra is changing. It's a new era, that this is a temple of national consciousness. And when he said that the construction of the Ram Mandir has filled people with a new energy. Viewers, let me put it this way. Some people, some nations need an event like hosting the Olympics or hosting a football World Cup tournament to achieve a new level of resurgence. What do we need? We only need our spiritualism. We only need a deep pride in who we are as a civilization for a new resurgence. For centuries, invaders and colonial rulers, whether the Baburs, Aurangzebs, or the British, they have tried to pull down India's civilization. And the way for them to do that has been an attack and an attempt at attacking and downplaying our Hindu tradition. Everything associated with Hinduism, even Sanskrit, anything associated with Hinduism was to be attacked, demolished, broken, castigated, typecast. And unfortunately, there was this English-speaking elite in our country who supported this effort. And so today, when we as a country have everything on our side, it's a magical moment. Economics is on our side. You're going to be the third largest economy in the world. Geostrategic clout is on our side. Look at the way we have dealt with the world after Ukraine. The whole world is looking at us. Look at our very stable political framework. Look at what it was 20 years back. Governments changing every few months. Look at the solidity today. All that we needed was, along with all of this, a spiritual reawakening. A confidence that the Ram Mandir gives us and gives us all. So now I believe that we are poised for a new level of scientific, geostrategic and economic progress. Mark my words, viewers, you will see how fast we'll move from it. We will move faster and faster to achieve the most impossible of targets. And we will all see a developed Bharat in our lifetime. We will see a Viksit Bharat much before 2047. Ladies and gentlemen, between 2030 and 2040, in fact, closer to 2030, we will be a developed nation. Everything is going to catalyze now. Everything is going to leapfrog. We're going to surprise the world with our limitless potential, the way we deal with global issues and take advantage of our position in the world. And the Bhavya Ram Mandir,
The Bhavya Ram Mandir is a catalyst for that. Ladies and gentlemen, let me start by saying once again, Jai Shri Ram. I come to you with two conversations today. The first on how this is a new era of Hindu reawakening. And the second today, viewers, very important. The Prime Minister has taken on the negativity brigade as the anti-Mandir propaganda fails. I'm debating that in a political context at 10 o'clock. And here are the headlines. This 22nd of January, this Monday evening on the debate tonight. After unprecedented penance, innumerable sacrifice and 5 centuries of a patient wait, the grand Ram Mandir is here. Prime Minister leads the Pran Pratishtha in Ayodhya, says, our Lord won't stay in a tent anymore. वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाते। Prime Minister hits out at the negativity brigade, asks, where are the naysayers who oppose the Ram Mandir? गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अभी तो यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। Yogi Adityanath declares Ram Rajya, says no violence and curfews anymore, only celebrations in Ayodhya. हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। RSS chief's big message of unity, says we'll continue to serve the people without any discrimination. Ladies and gentlemen, history has been set right. After a wait of 500 and more years, after centuries of anticipation, and after generations of struggle, Ram Lalla is back at his home. This is the biggest moment in the history of India. Every eye is wet with tears of joy and immense personal satisfaction. It has successfully awakened the collective consciousness of the nation. Take a look today at the big moments from the Pran Pratishtha.
ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब
इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। We have some wonderful conversations today. I'm starting once again with one of India's most foremost public intellectuals. But besides his various upadhis which he has, today Mr. Gurumurthy comes on Republic as a person who has fought with all his heart and conviction towards the consecration of the Ram Mandir. He's among those people who underplays himself, but he's played a big role in the political space towards making this happen. I'm also very, very honored to have with us Chidanand Saraswati ji. Pranam Swamiji. He's the president and spiritual head of the Parmarth Niketan Ashram. He's joining us from Ayodhya today. So my best wishes to both of you, and thank you for joining. Swamiji, before I come to you, I'll take one point from Mr. Gurumurthy. Mr. Gurumurthy, I found it brilliant the way the Prime Minister described it. Every sentence was full of meaning. So he referred to this more as the start of a new era than just the end of the struggle. He spoke about Kalchakra changing. He spoke about how this is the moment after which India will move into a new direction of progress. How did you view that and what the Prime Minister said after the Pran Pratishtha? Okay, I think I lost the frame there with Mr. Gurumurthy. May I put the same question to Chidanand Saraswati ji, who was there when this happened? The Prime Minister emphasized that this was not just the end of a struggle, but the start of a new era. उन्होंने कहा कि काल चक्र बदल रहा है. This is a temple of national consciousness. How do you view, Swamiji, how the Prime Minister put it? First of all, let me congratulate our nation, everyone in our nation and all over the world. What happened today, what we have witnessed today, it was amazing. Everybody was touched, and our Honorable Prime Minister has touched the heart of everyone. To me, millions, the dream of billions and billions people have been fulfilled. दूसरी बात, what he has said today, I think I have heard so many speeches of our Honorable Prime Minister, but today it was so amazing. Every word of his was full of wisdom. और मुझे तो ये लगता है आज जो उन्होंने मैसेज दिया है वो पूरे विश्व को छूने वाला है, क्योंकि आज पूरा विश्व सुन रहा था. केवल हिंदूज ही नहीं, दूसरे सब भी सुन रहे थे, क्योंकि आज का संदेश बड़ा महत्वपूर्ण था. और ये उन्होंने आज बता दिया कि ये समय विवाद का नहीं बल्कि समाधान का है, ये विरोध का नहीं बल्कि सहयोग का है. और जो लोग विभिन्न सोच भी रखते हैं उन्होंने भी कहा, उनको कोई ब्लेम नहीं किया, कुछ नया क्लेम नहीं किया. उन्होंने उनको भी कहा हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है. और मुझे तो ये लगता है कि आदरणीय मोदी जी की इस सोचने के ढंग से, अपने मन की बात के माध्यम से उन्होंने आज देश का माहौल भी बदला है और पूरे मुल्क को बदला है. आज उन्होंने लोगों के दिलों को भी बदला है और आज वो पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, क्योंकि ही बिलीव्स इन इट, ही लिव्स इन इट. केवल ये नहीं लगाया कि आज सब शाम को दिए जलाना. मैं देख रहा था कि वो अपने घर में बैठकर आज बैठकर दिए भी जला रहे हैं. तो ये वो व्यक्ति हैं हु वॉक्स द टॉक. बोला और चले गए, बोला और खत्म हो गए. वो कुछ नया बुनते हैं, कुछ नया चुनते हैं और फिर सबको सुनते हैं. और लेकिन
समाज को बात वो कहते हैं जो जोड़ने वाली बात हो। मुझे तो लगता है आज ये भी सिद्ध हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है। आज़ादी के बाद, मुझे तो लगता है कि आज इतिहास में ये पहली बार है कि आज़ादी के बाद इतना बड़ा महोत्सव जिस तरह का उन्होंने किया है, ये अपने आप में अद्भुत है। एक बात, 26 जनवरी हम मनाते हैं, 15 अगस्त हम मनाते हैं, लेकिन आज की उनके इस संदेश ने सिद्ध कर दिया है कि 22 जनवरी अपने आप में पूरे विश्व का एक महोत्सव होने जा रही है, जो एक नया युग लेकर आ रही है, जो एक नई चेतना जगा रही है, जो एक नई सोच को लेकर आ रही है। ये जो विचार है उनका, क्योंकि आज सबसे बड़ा कोई संकट है तो वो सोच का संकट है। उस सोच के संकट का समाधान भी हमारे ऋषियों ने वैचारिक वैक्सीन को दिया है। आज वैचारिक प्रदूषण, वाणी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, इतने सारे प्रदूषण हैं, लेकिन उन्होंने उन प्रदूषणों की चर्चा किए बिना उन्होंने कहा अगर कोई समाधान है वो है अपने विचारों को बदलो, अपने सोच को बदलो। जो तुमने सोचा उसको फिर सोचो, फिर करो। जो लोग कहते थे कि सनातन बीमारी है, आज उन्होंने बता दिया सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। जो कहते हैं कि सनातन समस्या है, आज उन्होंने दिखा दिया कि सनातन समस्या नहीं है, सनातन तो समाधान है। सनातन उन्होंने बताया कि डेंगू है, उन्होंने बता दिया कि डेंगू नहीं है, सनातन तो डिवाइन है। और उन्होंने ये भी किया, और डेंगू जब काटता है तो व्यक्ति को कमजोर कर देता है। उन्होंने कहा कि आज इस चश्मे को बदलने की जरूरत है, इस दृष्टि को बदलने की जरूरत है, एक नई नजरिए से सोचने की जरूरत है, क्योंकि भारत की चेतना एक नए आयाम की ओर बढ़ रही है। इसलिए हमें इस डिविनिटी को, इस पवित्रता को पहचानना है, अपने अंदर जगाना है, क्योंकि राम जिनकी आज वहां पर विराजमान किया है वो कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि इस देश का प्रतिमान है। क्योंकि राम हमारे देश की आत्मा है, श्री राम हमारे देश की चेतना है, हमारे देश के प्राण हैं। और श्री राम सच मानिए तो हमारे देश की शक्ति है, हमारे देश की भक्ति है, हमारे देश की क्रांति है, और हमारे देश की शांति को प्रदान करने के लिए भी आज श्री राम के उस संदेश की जरूरत है। और इससे प्यार आप ये देखिए ना, आप उन्होंने उत्तर से भगवान श्री राम गए दक्षिण में, एक सेतु बनाया, लेकिन जब वापस लौटते हैं, अयोध्या वापस आते हैं, आज उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर में भी वही किया कि उत्तर से श्री राम और दक्षिण से हनुमान, उत्तर और दक्षिण के बीच में यही है पूरे देश का समाधान कि श्री राम और हनुमान, उत्तर और दक्षिण, ये है इस देश का समाधान कि सब मिलकर और सच इस देश को आगे बढ़ाएं। 140 करोड़ लोग साथ से साथ कंधा मिलाएं और संगच्छध्वम संगवदध्वम संगवो मनांसी जानताम, साथ साथ मिलकर काम करें। ये उनका संदेश अद्भुत था, अलौकिक था, अतुल्य था। और इसलिए आने वाले समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब कुछ सिद्ध हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। आने वाले 10 साल में जो बदला है वो अद्भुत है, लेकिन आगे आने वाले 10 साल में, इसलिए इस देश में देश के अद्भुत प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय को वो और एक वैचारिक परिवर्तन दे सकें। वो बिल्कुल आपने बहुत क्लियरली ये बात रखी कि रोम रोम में राम, और आपने कहा कि अपनी संस्कृति को जानना और जीना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, यू पुट इट वेरी वेरी वेल। नाउ आई हैव गॉट द लाइन बैक विद मिस्टर गुरुमूर्ति. First of all, congratulations to you, sir, personally, because we all know how hard you have worked for this in the most difficult period. My question to you was about how the Prime Minister framed today's event as the start of an era, of a moment of transformation. And increasingly, Mr. Gurumurthy, people believe so intensely in Prime Minister Modi. He saw the country through the dark times of COVID. After Ukraine, when everybody believed that we would sink, we rose. Even when ISRO had a failure with the moon mission, he stood by it till we were a success. So many downturns have been turned into upsides by the Prime Minister. In that context,
How do you view the Prime Minister saying that the Kal Chakra is changing? What is that Kal Chakra going to entail, Mr. Gurumurthy, for the country? See, as I was listening to the Prime Minister, as you mentioned, I had very intense association with the Ram Janmabhoomi movement from the start. But I expand the horizon of the Kal Chakra to the start of the 20th century to where we are today. The Kal Chakra that the Prime Minister mentioned made me recall two great personalities who shaped the Indian polity, nationalism, and our soul as a nation. One was Swami Vivekananda, who said, nationalism in India is of those whose heart beats to the same spiritual tune. Today, everyone's heart beat to the same spiritual tune. And this was the foundation of our nationalism. And Mahatma Gandhi refined it further and symbolized Rama as the spirit of India. When he came from South Africa and traveled throughout India, he had Ramayana in his hands. And he identified Rama as the symbol, as the brand by which he should connect to the people and this country. And he surrendered himself to Rama. He said, in him I see everybody. And he is the savior. And he is the one who can provide strength, energy. And he is me and I am him. And people said that the name Rama is basically one which will appeal to the Hindu, but not to the Muslim. Mahatma Gandhi, I only laugh at those people who tell him Rama belongs to everyone. That's precisely what the Prime Minister said. He talked about Rama and Rashtra. And he talked about Dev and Desh. When I was listening to him, I was only relating to what Swami Vivekananda said and what Mahatma Gandhi said. Mahatma Gandhi alone realized the power of Rama when the Indian masses did not know how to handle the foreign ruler. He found Rama as the instrument by which he could galvanize the people. He expounded the spiritual nationalism of the people by symbolically identifying Rama and Ram Bhajan. And that is the power which he reposed in Rama and said Swarajya means Ramarajya. If Swarajya is not going to lead to Ramarajya, then we don't need the Swarajya. He said if we are going to replace the foreign rulers by local rulers, we don't need that indigenous rulers. He was very, very clear about all this. And that Kal Chakra, which was lost in the post-independence period, that phase of the Kal Chakra which was lost, is being reinforced by the Ram temple being consecrated. And the Prime Minister recalled Rama as Rashtra, precisely what Gandhiji said. And the spiritual nationalism which Swami Vivekananda expounded is precisely what the Prime Minister recalled today. So, when he spoke about Kal Chakra, it is reinstating the pre-independence values which have been lost in the post-independence period. What gave energy for the Indians to fight and get freedom was lost in the post-independence period. And so, when the Prime Minister said the Kal Chakra is turning, he said the energizing values of the freedom movement are being reinstated, and that is what will provide India the capacity to handle the post-independent challenges which were not
handled properly because we lost the pre-independence values. And I think today, as I was looking at the Prime Minister's speech and relating it to my own experience with the Ram Janmabhoomi movement and my study of the pre-independence period made me come to this conclusion that the Ram Janmabhoomi consecration represents the reinstatement of the pre-independence values and that is the re-beginning of the new Kal Chakra, which will provide energy, capacity, confidence for the Indians to take up the challenges which they have to face at the national and as well at the global level. Absolutely. Gurumurthy ji, I think you have put it so well. And I think the most important thing is that we need to be clear about who we are. We need to have a deep belief, deep, intense religious belief. और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम विलास वेदांती, हु इज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम रोशन दास जी महाराज ऑफ द राम जानकी मंदिर जनकपुर धाम नेपाल। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राज राजेश्वर गुरु जी, हु इज फाउंडर एंड स्पिरिचुअल लीडर of the International Siddhashram Shakti UK and India. He is all joining us from Ayodhya. मैं आप सबको चरण स्पर्श करता हूं और हमारे साथ जुड़े हुए सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, आप सबको मैं चरण स्पर्श करता हूं। आप रिपब्लिक पे आए, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बहुत समय वेट करना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। मैं पहले डॉक्टर रामविलास वेदांती को पूछना चाहता हूं कि जब आपने सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे राम लल्ला अब टेंट में नहीं रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, जब ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो मतलब कैसी फीलिंग थी लोगों में वहां पे, जितने संत समाज के लोग थे जो जुड़े हुए इतने सालों से इस तपस्या में, तो बहुत ही भावुक हो गए होंगे उस वक्त। जरा 1528 में उस मोमेंट के बारे में जरा बताएं स्वामी। 1528 में बाबर ने जब मंदिर को तोड़ा था, उसके बाद सन 49 में 22 और 23 दिसंबर की रात्रि को मेरे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने रामलला का प्राकट्य किया था। सन 49 में रामलला के प्राकट्य के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया था गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। एक प्रधानमंत्री थे जो रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन भारत में एक पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रामलला मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा स्वयं किया। कितना अंतर है कांग्रेस में और भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान श्री नरेंद्र मोदी जी में। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो दृश्य अयोध्या में मैंने अपनी आंखों से देखा और प्रधानमंत्री ने जिस कालचक्र का वर्णन किया, त्रेता का जो कालचक्र था, जिस कालचक्र में रावण जैसे राक्षस लोग पैदा हुए थे, उन रावण जैसे राक्षसों के संहार के लिए त्रेता में राम का अवतार हुआ था रामनवमी के दिन। मुझे ऐसा लगता है कि त्रेता कलयुग में उतर कर आ गया है और त्रेता में भगवान राम कलयुग में उतर करके 22 जनवरी को जो तिथि और जो मुहूर्त था, उस मुहूर्त में जब मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया, भगवान रामलला की आरती किया, उसके हम लोग साक्षी हैं। वह दृश्य दुनिया के लोगों ने देखा होगा। नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए और भारत के लोगों को जो शुभ संदेश दिया है, वह कालचक्र आज भी चल रहा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कालचक्र था धर्मनिरपेक्षता का, पंथ निरपेक्षता का, लेकिन अब जो कालचक्र आ रहा है वो राम राज्य का आ रहा है। महात्मा गांधी ने जो घोषणा किया था कि आज़ादी के बाद मैं राम राज्य घोषित करूंगा, लेकिन आज़ादी के 60 वर्षों के बाद भी राम राज्य की घोषणा नहीं हो पाई। लेकिन मोदी जी 10 साल के अंदर ही भारत में राम राज्य की घोषणा कर दिए। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री देश में नहीं हुआ जो सबको साथ में लेकर चले, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे एक जाति के आधार पर चलते थे, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करते थे। आज मैंने देखा विश्व के 122 देश के लोग, उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, हर धर्म के लोग थे और हर संप्रदाय के लोग थे।
देश के हर प्रांतों के साधु महात्मा लोग वहां विराजमान थे। आज वह दृश्य भारत का यह पहला दृश्य है जब भारत के सभी समाज के लोग यहां एक साथ उपस्थित थे। ऐसा दृश्य हमने अयोध्या में पहली बार देखा। शायद दुनिया के लोगों ने भी नहीं देखा होगा जो दृश्य आज मोदी जी ने अयोध्या में प्रस्तुत किया। अयोध्या के दिव्य भव्य अलौकिक राम मंदिर में भगवान राम लला को वैदिक मंत्रों के द्वारा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 18 पुराणों के मंत्रों के द्वारा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मंत्रों के द्वारा और नारद पांचरात्र पद्धति से जिस प्रकार भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आज तक दुनिया के लोगों ने ऐसी प्राण प्रतिष्ठा नहीं देखा होगा। और मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, समाज के लिए, ऐसा काम भी आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। जहां तक मैं समझता हूं, आज जो काल चक्र का वर्णन किया वह काल था त्रेता का, और आज कलयुग का काल तंत्र आ गया है। कलयुग के इस काल तंत्र में जिस प्रकार त्रेता के काल तंत्र में भगवान राम ने रावण जैसे राक्षसों का विध्वंस किया था, इस कलयुग के काल चक्र में मोदी जैसा महापुरुष हमारे भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस ढंग से सामाजिक समरसता का संदेश दिया है, सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया है, राष्ट्रीय सद्भावना का संदेश दिया है, आज तक ऐसा संदेश किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। और मुझे ऐसा लगता है महात्मा गांधी की बात अब चरितार्थ होने वाली है। माननीय मोहन राव भागवत जी ने भी कहा अब समय आ गया है राम राज्य घोषणा की। और मुझे ऐसा लगता है जब रामलला का मंदिर बन जाएगा और मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज, भगवा ध्वज लहरा दिया जाएगा, उसी दिन भारत को राम राज्य घोषित कर दिया जाएगा। और इस राम राज्य की कल्पना के आधार पर 2024 में जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में भी मोदी 400 सीट पार कर भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने जा रहे हैं। आज समाज के हर वर्ग के लोगों को, हर प्रांत के लोगों को, हर जाति के लोगों को जो संदेश मोदी जी ने दिया है, ऐसा संदेश आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था। अयोध्या राम जन्मभूमि का वह दृश्य ऐसा लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। हमने सोचा था सामाजिक समरसता के लिए इस प्रकार का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा, लेकिन आज जो राम जन्मभूमि का अलौकिक दृश्य था, अलौकिक छवि थी, अलौकिक सौंदर्य था, ऐसा सौंदर्य दुनिया के लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। रामलला की वह छवि, रामलला का वह 5 वर्ष के बालक का सौंदर्य, उनका जो धनुष बाण था, जो तीर था, उनका जो मुकुट था, उनका जो सौंदर्य था, उनकी जो प्रतिभा थी, जो ज्ञान था, आज झलकता हुआ भगवान राम के मुखारविंद में दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लगता है वह काल चक्र धार्मिक सद्भावना को लेकर आया है, वह काल चक्र राष्ट्रीय सद्भावना को लेकर आया है, वह काल चक्र सबको साथ में लेकर चलने का काम करने के लिए आया है। इसलिए आज हम सभी अयोध्यावासी संत और देश के संत लोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराकर दुनिया के लोगों को एक करने का काम किया है। G20 में मोदी जी ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को मैं अपना परिवार मानता हूं, सारी वसुधा के लोग हमारे परिवार हैं। और विश्व के सभी देश के लोगों ने आकर जब मोदी जी के इस भाषण को सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आज मोदी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज तक ये वेद का संदेश किसी ने नहीं दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात किसी ने नहीं किया, अपने परिवार की बात की, अपने जाति की बात किया, अपने धर्म की बात किया, अपने गांव की बात किया। लेकिन मोदी जी ने संपूर्ण समाज की बात किया, संपूर्ण देश की बात किया, संपूर्ण राष्ट्र की बात किया। भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए, भारतीयता को और समाज के हर वर्ग के लोगों को सामाजिक समरसता में शामिल करने के लिए उन्होंने वक्तव्य दिया है। आज कुछ ऐसे भी लोग इस देश के अंदर हैं जो सनातन को, हिंदुत्व को डेंगू कहते हैं, कोरोना कहते हैं। सनातन और हिंदू के धर्म को ये उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सनातन सदा से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए त्रेता में भगवान राम ने अवतार लिया था, द्वापर में उसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था,
और कलयुग में त्रेता के राम फिर से आज 22 जनवरी को अयोध्या में उपस्थित हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है यह जो दृश्य हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सारे विश्व के लोगों ने देखा होगा। इसलिए वह काल चक्र आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित होकर समाज को एक करने का काम कर रहा है जी। और महर्षि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है अयोध्या का, वो वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में किया था। लेकिन वाल्मीकि रामायण के उस वर्णन को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में उतार दिया। कौशलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान निविष्टा सरयू तीरे प्रभुत धनधान्यवान अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुनामान वेंद्र ने यापुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्वैच योजनानि महापुरी श्रीमती त्रिण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या में वास्तु दृष्टिकोण से राम पथ बन रहा है, धर्म पथ बन रहा है, भक्ति पथ बन रहा है, ज्ञान पथ बन रहा है और चारों ओर जो रिंग रोड बन रहा है सारे देश से जोड़ने के लिए। जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का निर्माण किया है, शायद किसी भी प्रधानमंत्री ने अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की कल्पना नहीं किया था। अयोध्या जंक्शन था लेकिन अयोध्या अब धाम हो गया है। उस अयोध्या धाम में जब यात्री आएंगे तो बदला हुआ दृश्य देखेंगे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राम लला की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री ने गौरव के साथ उस राम लला की मंगलमय दिव्य प्राण प्रतिष्ठा करके दुनिया के लोगों के सामने भगवान के दर्शन के लिए प्रस्तुत कर दिया है। आज विश्व लालायित है कि राम लला का दर्शन हम भी करें। और यह जो आज दृश्य देखा गया, भारत का कोई ऐसा गांव नहीं है, भारत का कोई ऐसा मंदिर नहीं है, भारत का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दीपावली न मनाई गई हो सकता है दीपावली में दीपक न जला हो, लेकिन आज 22 जनवरी को संपूर्ण देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी सनातनी और हिंदू रहते हैं, यहां तक अयोध्या के मुसलमानों ने भी दीपावली मनाया। मैंने सुना इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में, चीन में, जापान में, सब जगह लोगों ने आज दीपावली मनाया। मैं तो चाहता हूं आज का दिन राष्ट्रीय दिवस घोषित करके राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। जैसे 26 जनवरी की घोषणा होती है, जैसे 15 अगस्त की छुट्टी रहती है, जैसे रामनवमी की छुट्टी रहती है, वैसे 22 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर और इस देश के अंदर प्रतिवर्ष दीपावली मनाई जाए। ये मेरी इच्छा है, ये अयोध्या वासियों की इच्छा है। इसलिए हम सब लोगों ने जो भव्य दृश्य देखा, जो अलौकिक दृश्य देखा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंदिर एक बार बनाया था राजा विक्रमादित्य ने और उसको बाबर ने 1528 में तोड़वा दिया था। लेकिन इसके बाद विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंदिर मोदी जी ने 2020 में 5 अगस्त को भूमि पूजन और शिलान्यास करके दुनिया के लोगों को दिखा दिया कि मंदिर ऐसा बनता है और विश्व के सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। भारत के हर गांव से राम मंदिर निर्माण के लिए अपना अपना योगदान लोगों ने दिया है और उसी का परिणाम है कि आज भगवान राम के मंदिर की दिव्यता, भव्यता दिखाई दे रही है। वहीं पर दक्षिण दिशा की ओर कुबेर टीला में गीधराज जटायु का दृश्य दिखाई दे रहा है। वहीं बगल में भगवान शंकर का मंगलमय दिव्य दृश्य दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने कहा कि हनुमानगढ़ी के हनुमान जी भगवान राम के साथ में हमेशा थे और इस मंदिर में भी हनुमान जी महाराज दरवाजे में प्रवेश करने के बाद, सिंह द्वार के बाद एक और गरुड़ जी है और दूसरे और हनुमान जी महाराज है। ऐसा दृश्य दुनिया के किसी मंदिर में नहीं दिखाई दिया होगा जैसा दृश्य अयोध्या के भगवान राम की जन्मभूमि में दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की ओर से, संपूर्ण विश्व के महात्माओं की ओर से, धर्माचार्यों की ओर से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हम लोगों को अलौकिक दिव्य भव्य राम मंदिर का दर्शन कराने का प्रयास किया है। जी 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 डॉक्टर वेदांती, मैं अगला सवाल सिद्धेश गुरुदेव रितेश्वर महाराज जी से पूछना चाहूंगा। अगर आप गुरुदेव ये बता सके कि जो परिवर्तन की बात कही है प्रधानमंत्री ने, ट्रांसफॉर्मेशन, कि दिस अ मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द कंट्री, इन अ वे दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो लिंक्ड टू कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अभी गुरुमूर्ति जी ने बात कही थी स्वामी विवेकानंद की और
93 में 127 साल पहले उन्होंने जो बात कही थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ नेशंस शिकागो में, तो सब लोग वहां पे मतलब उनके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से प्रेरित हुए थे। एक तरह से दैट कॉन्फिडेंस हैज आल्सो कम बैक, हैजंट इट सदगुरु जी? और वो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। अर्नब, आज उस पल का साक्षी होते हुए और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोल रहे, मैंने बहुत सुना है और राष्ट्र ने सुना है उनको, पर आज उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके कंठ, उनकी आवाज और शब्दावली, लगता है कि प्रधानमंत्री स्वयं भी जब सुनेंगे तो कहेंगे कि आज राम लला मेरे कंठ में विराजित। और आज राम लला ने अपनी बातें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख से कहलवाई। मैं जहां बैठा था वहां सैकड़ों संतों ने कहा, अद्भुत, ये लग ही नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, लग रहा है रामचंद्र भगवान उनके भीतर प्रकट होकर के सारी चीजें बोल रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही अर्नब, भगवान राम आग नहीं ऊर्जा है, और आग नहीं ऊर्जा है, इस बात को कहकर आज देश के करोड़ों नौजवानों को, जो नौजवान अब समझ नहीं पा रहे थे मंदिर तो बन गया, अब क्या करें, मंदिर निर्माण का अपना एक उत्साह था, उमंग था, उन्माद था, जोश था, पर आज मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो नौजवान, वो भारतवासी, वो मातृशक्ति, वो विश्व के कोने कोने में बैठे सारे सनातनी लोग, और मैं तो कहूं 8 अरब वसुधैव कुटुंबकम के लोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है, वो सब सोच रहे थे मंदिर तो बन गया, अब क्या। परंतु जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के साथ दुनिया को संबोधित किया, तो नौजवानों के भीतर मैं देख रहा था कि एक आशा की किरण, एक दिव्यता, एक तेज, जैसे गुरुमूर्ति जी ने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, उनके भीतर में एक तत्क्षण परिवर्तन देखने को मिला। मैं संतों के बीच था, सेलिब्रिटीज से मिलन हुआ, युवाओं से मिलन हुआ, लौटते समय मैं पैदल आया, फिर अभी सरजू के तीर पर था जहां लाखों लोग अभी भी हैं, जहां पर आनंद, आह्लाद, पटाखे। लेकिन एक अद्भुत बात मैंने देखी अर्नब जी, वो कहीं बेहिसाब भीड़ का उन्माद नहीं देखा, आज भगवान राम की मर्यादा मैंने देखी है अयोध्या जी में। इतने भीड़ के बाद स्वतः स्फूर्त भाव से, मानो प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद भारत के लोगों ने निश्चय कर लिया कि उन्होंने जो तपस्या किया, जिसकी बात हमारे सरसंघ चालक ने भी कही, मोहन भागवत जी ने, इन्होंने तो तपस्या कर लिया, अब हमारी तपस्या की बारी है, देशवासियों की तपस्या की बारी है। और अब मैं देख रहा था आज देशवासी तपस्या के मूड में आ चुके। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक मंदिर के द्वारा, जो कभी कहा जा रहा था कि एक मंदिर है, एक मंदिर बनने से क्या होगा, अस्पताल बना दो, रोटी कहां से मिलेगा, रोजगार कहां से मिलेगा, परंतु वो देश के मानस में आज जो स्वाभिमान लौटा है, देश के मानस में आज जो सांस्कृतिक उत्कर्ष और उत्थान का जो पुनः स्थापन हुआ है, और प्रत्येक भारतीयों के भीतर महात्मा गांधी जी जो कहते राष्ट्र के लिए, स्वामी विवेकानंद जो राष्ट्र के लिए कहते, अनंत महापुरुषों ने जो राष्ट्र के लिए कहा, और स्वयं भगवान राम अपने अयोध्या राष्ट्र के लिए इस शौर्य, तेज, तपस्या, समता, आनंद, प्रेम, शांति, सर्वग्राह्यता, सबको एक बनाने को लेकर चल रहे थे। देयर इज नो कास्ट, नो क्रीड, नो रिलीजन, नो सेक्ट, बल्कि आज तो भारत इंटेलेक्ट होकर के बैठा हुआ था पूरा का पूरा, आज पूरी दुनिया इंटेलेक्ट होकर बैठी हुई थी। अर्नब, आपके इस चैनल पर आज लोग जब सुन रहे होंगे, और गुरुमूर्ति जी ने बोला, चिदानंद जी अभी मिले थे सरयू के तट पर, क्या आनंद है, हम गले मिल रहे थे, जो जहां मिल रहा है गले मिल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी गंभीरता आई है भारत में। आज प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद भारतीय नौजवान भी, जो अपने आप को कभी दिशाहीन महसूस करता था, मैं गौरव से कह सकता हूं और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, मैंने सैकड़ों नौजवानों से बात की, 108 शहरों में आज श्री आनंदम धाम के नौजवान भी दीपोत्सव मना रहे हैं, विदेशों से लेकर देशों में। मैंने जूम पर उनसे बात की, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद हमें लगता है मार्ग मिल गया,
1000 वर्ष बाद भारत कैसा होगा, आज यह राम मंदिर उसका नींव के रूप में रखी गई है। भगवान राम इस राष्ट्र देव के रूप में आए हैं और राष्ट्र देव की पूजा प्रत्येक हृदय में होगी, प्रत्येक नौजवान करेंगे, भारतीय करेंगे और सारी दुनिया करेगी। मैं इस हालात के क्षण को भारत के ट्रांसफॉर्मेशन और फिर जो मैंने कहा था, आग नहीं ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ लव, एनर्जी ऑफ पीस, एनर्जी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दुनिया की जितनी भी एनर्जी है वो आज सब भगवान राम के मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रहे। अद्भुत दर्शन। और मेरा अगला सवाल राम रोशन दास जी महाराज से है, जो राम जानकी मंदिर जनकपुर धाम नेपाल से है। महाराज जी, आपने कहा था कि, और आपने कहा है कि नेपाल और भारत सिर्फ दो फ्रेंडली नेशंस नहीं है, मगर एक तरह से संबंधी है। तो मेरा सवाल आपसे कि आउटसाइड इंडियाज बॉर्डर्स आज की जो ये प्राण प्रतिष्ठा का जो अयोध्या में हुआ, भारत के बाहर हिंदुओं के बीच में और अन्य देशों में सनातनियों के बीच में इसका क्या प्रभाव होगा, आपको क्या लगता है महाराज? देखा जाए तो मैं नेपाल से हूँ, जनकपुर धाम से हूँ और त्रेता युग से, भाई साहब थोड़ा ही चेक करो, त्रेता युग से। हेलो, सुन रहे हैं आप मेरा? जी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। नहीं आ रही है सर। हाँ ठीक। त्रेता युग से हम लोग एक संबंध में हो। मिथिला और अयोध्या की त्रेता युग से संबंध है, लेकिन त्रेता युग की संबंध देखा जाए तो नेपाल और भारत में अभी भी है बेटी रोटी का संबंध। और नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र देश सदियों से रहा। कुछ दिन पूर्व एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आकर के हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष हुआ है, पर उसे कोई भावनात्मक स्वीकार नहीं किया है नेपाल भी। और नेपाल भारत का ऐसा रिश्ता नहीं, अगर रिश्ता से भी ऊपर हिमालय की गोद से जो जल भी निकलता है वो भारत के हर मानव के अंदर वो जल पहुंचते हैं। और यहाँ की अगर हवा उठे समुद्र तट से तो वो जल बन के फिर नेपाल में भी बरसते हैं और सबके मानव जीवन में पहुंचते हैं। तो ये हवा और जल दोनों से हम लोग एक रिश्ता और एक संस्कृति से बंधे हैं। तो ये सब जगह इसकी आवश्यक थी। और ये आज की प्राण प्रतिष्ठा हम दोनों एक संबंध राष्ट्र हमारे जो हैं, तो दोनों जगह उतना ही हर्ष उल्लास की आज के दिन हैं। जो नेपाल में हर जगह लाखों बत्ती से माने दीपावली मनाया गया है, लाखों लाख बत्ती जलाया गया है। हर गांव में, हर घर में कोई ऐसा देवालय नहीं है जहां पर आज दीपोत्सव नहीं हुआ है। हमारे यहाँ भी जानकी महल में 1.25 लाख दीप प्रज्वलित हुआ है। शोभा यात्रा, संस्कृति कार्यक्रम 7 दिनों से चल रहा था। काठमांडू हो, पशुपतिनाथ हो, हर जगह उतना ही हर्षोल्लास आज के दिन है। और लग रहा है जो विश्व पटल पे कहीं ऐसी जगह नहीं है जो आज इसको सनातन के हर प्रेमी लोग नहीं मनाया हो। तो ये एक बहुत बड़ी, हम कहते हैं, हम तो बहुत हृदय से भारतीय सामान्य प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत किशोरी जी का आशीर्वाद देता हूँ। वो तो साक्षात हम लोग उनको महापुरुष के ही रूप में दर्शन करते हैं। जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उसी समय हम लोग बचपन में समाचार के ही माध्यम से उनको समझ रहे थे। और बाद में जब भारतीय प्रधानमंत्री हुए, उसी समय हम लोग 21वीं शताब्दी के जो अभी के हम लोग हैं, उस समय हम लोग कल्पना कर चुके थे जो इन्हीं के समय में हम लोग राम राज्य का जो विश्व पटल पर आज तो
मुखारबिंद से हमारे संघ के बोले भी हुए थे मोहन भागवत जी, जो ये विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित होंगे, तो यहीं से स्थापित होगा। हम लोग भी आज की प्रधानमंत्री जी का जो वाचन सुना हूँ, तो हम लोग का भी अनुभव हुआ जो यहीं से स्थापित होगा और पूरे विश्व में सनातन की फिर से राम राज आएगा, ऐसा लगा मुझे, आज अनुभव हुआ यहाँ आकर के जी। और गर्व करता हूँ बिल्कुल जो और राम राज्य हर जगह स्थापित हुआ है, राम में हो गया है वातावरण। और जो एक भटके हुए भी लोग थे, हम हर धर्म की बात कर रहा हूँ, जो सनातन के अपनी पूर्वजों सनातन से जुड़ के फिर कहीं पे भटके हुए थे, आज उनको भी देखा गया। जो इस प्राकट्य लीला कहूँगा अयोध्या के लिए फिर से दोबारा, जो इस प्राकट्य लीला जो आज राम जी फिर से प्राण प्रतिष्ठित होकर के राम जन्मभूमि में विराजे हैं, और हर जगह हर पंथ के लोग आज इस राम को याद करके अपनी अपनी जगहों से याद भी किया है और महोत्सव भी मनाया है। और नेपाल वासी, जनकपुर धाम वासी, सीता जी के नाते किशोरी जी के हम लोग दीदी समझते हैं, लोक विधि में राम जी को दूल्हा और पहुना समझते हैं, तो हम लोग तो उतना ही खुशी हैं जो हमारे दीदी के यहाँ पर महल बनी है, जो एक टेंट में, प्रधानमंत्री जी भी कहें टेंट से आज बहुत महलों में विराजेंगे, आज भवन में विराजेंगे, तो इससे हर्ष और उल्लास हम लोग के लिए क्या हो सकता है। स्वाभाविक है, ससुराल वाले मैके वाले पीहर से हूँ, तो हम लोग बहुत खुश हूँ और इसीलिए आया भी हूँ, जो कम से कम आज के दिन की साक्षी हम लोग भी यहाँ पर हो जाए। और बहुत हर्षोल्लासित हूँ। और कितने नेपाल लोगों ने और भारत पे, एक संस्कृति सोशल मीडिया से, में, संबंध से, डिजिटल में सबने आज इस कार्यक्रम को देखा है और सब लोग एक तरह से बहुत ही इमोशनल और प्रभावित हुए हैं। मेरा अगला सवाल बहुत देर तक रोक के रखा है मैंने उनको, सॉरी फॉर द डिले, टू श्री राजेश्वर गुरुजी। गुरुजी, आपने शेयर किया है वीडियो सोशल मीडिया में विद ब्यूटीफुल सैफरन फ्लैग्स in the United Kingdom, in England. How are people celebrating the return of Lord Ram in the UK? And you have also been awarded at the White House with a medal for promoting interfaith unity. In your view, how does this moment mean for the way forward for India and for India's spiritual reawakening? सबसे पहले अर्नब जी, आपको जय श्री राम, और आपकी चैनल के माध्यम से पूरा विश्व जो देख रहा है उसको धन्यवाद करता हूँ। दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट, एंड दिस अचीवमेंट विच इज़ वी लर्न लॉट फ्रॉम आवर डियर प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। उन्होंने बहुत सुंदर बात की, पूज्य संतों ने बहुत कुछ अभी अपना संदेश दिया, ज्ञान दिया, मार्ग दिया, मगर आज का जो काल चक्र की जो बात की हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस सब लोगों के अंदर, मेरे ख्याल से जो लोग डिप्रेस भी थे, जो अपने आप में एक महसूस करते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और मैं ये नहीं कर सकता, तो उन्होंने गिलहरी का एक एग्जाम्पल देकर के बताया और संदेश दिया समाज को कि आप अपने आप को छोटे मत समझो। विदेश की जब बात आई तो 16 तारीख को, जनवरी को, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सनातन धर्म की संस्था के माध्यम से हमारे सिद्धाश्रम और वहाँ के संसद ने मिलकर के भगवान श्री राम का मंदिर का उत्सव भी मनाया। और अभी हमारे सिद्धाश्रम में सोशल मीडिया पे भी देखा होगा तो जो हमारे भगवे कलर की ध्वजा से लेकर के
पूरे इंग्लैंड के जितने मंदिर है सब ने आज का एक उत्सव जो मनाया, उससे एक एहसास होता है कि आज से काल चक्र में परिवर्तन आया। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से संतों में चेतना आई, समाज में चेतना आई, हमारे यूथ में चेतना आई, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे विश्व के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनको भी एक मार्गदर्शन मिला भगवान श्री राम के माध्यम से। यही हमारी सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से मैं तो इतना ही कहूंगा, हिंदू राष्ट्र के साथ साथ राम राज्य भी स्थापित हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो प्रधानमंत्री ने जो गिलहरी की एग्जाम्पल दी, आई थिंक इट वाज वेरी ब्यूटीफुली फ्रेज्ड एंड वेरी वेल थॉट। प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज इज दैट एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स, एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स। और मैं ये भी कहूंगा कि आज जब मैं ये टीवी स्क्रीन देख रहा हूँ, हमारे साथ आप हैं, हमारे साथ गुरुमूर्ति जी थे, चिदानंद सरस्वती जी हैं, रामविलास वेदांती जी हैं, राम रोशन दास जी महाराज हैं, हम लोग सब जब हैं तो कोई ये सोच भी नहीं सका होगा आज से 10 साल पहले कि ऐसी कोई डिस्कशन होगी, स्पिरिचुअल डिस्कशन टेलीविजन पर। और एक बहुत बड़ी बात यह है, आई वांट टू गो टू नीना राय जी, बहुत बड़ी बात यह है जो कहा जाता है कि संस्कृति और आध्यात्मिक सोच और बातें राजनेताओं को नहीं करनी चाहिए। तो वी हैव द ऑथर ऑफ नीना राय जी, शी इज द ऑथर ऑफ अमेजिंग अयोध्या। नीना राय जी, हाउ डू यू व्यू today's event for the country? And you wrote your book describing Ayodhya Nagari vividly. Do you also see this grand inauguration as a unifying force for Indians across the world? Jai Shri Ram to everybody. Jai Shri Ram to you, Arnab. And my naman to all the sadhu sant who are here. It is because of them that we have, fought the battle for 500 years. And finally, we have reclaimed the temple back. And thank you to Modi ji, who's got us the temple again. Well, if you ask my opinion, I think that this is a turning point for Hindus across the world. This is not only a turning point for India, but Hindus across the world. In the earlier times, we noticed that Swami Vivekananda had to go to America to put his views across. Now the world looks to Modi, to India, to hear what the opinion is. And so therefore you see that there is a drastic change that has already occurred. India is already rising. India is shining. India is going to go ahead. This is the start of a new dawn and a new era. The new era that is going to come is going to imbibe Hindus with a lot of confidence, and the fact that we are all Gilharis. If Modi ji can call himself a Gilhari, then we who are we? I mean, I thought we were the Gilharis. Modi ji should be the Hanuman who has got Ram Bhagwan, who's helped Ram Bhagwan to come back, right? So one of the things that he has said is that he's a Gilhari, and given the example that one man can achieve, people can achieve what they set out to. There is a saying, it says, if you walk alone, you will go fast. If you walk together, then you will go far. And so we have walked this together. The Hindus have walked this together. Of course, right now under the netritva, under the leadership of Modi ji, and got to this momentous occasion. The first time Diwali happened, the Vanvas was for only 14 years. It was the first Diwali. This time, this is a mega Diwali because we have 500 years of wait before Ram Bhagwan came in. And then we speak of Ram Rajya, the return of Ram Rajya. I would like to tell everybody that I already see the establishment of Ram Rajya in India under the leadership of Prime Minister Modi. Yes. One of the things in Valmiki Ramayana that describes the traits of the Ikshwaku kings. There are 3 main traits that the Ikshwaku kings follow. Ikshwaku is the son of Manu who established Ayodhya. And in the Ikshwaku Vansh, Ram Bhagwan is born. And they say they had 3 traits. All the kings had 3 traits. The first trait is Param Dharmatma. That means they are the upholders of faith. They are Sanatani Hindus, upholders of faith. So Modi ji has upheld the faith of Hindus, upheld the faith of millions of Hindus by re-establishing the temple. Yes. The second thing is Veer, brave.
Absolutely. Modi ji has been very brave. We have seen him go against all sorts of taunts, go against the world, go against Yes, all Neena the ji. negativity, all of this. And the third is Satyavadi. What they say, they achieve. Therefore, I see that Ram Rajya is already here, Yes. and we must welcome it with open hands. Yes, 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 Neena ji, absolutely. We have to come out of that slave mentality. I would like to thank everyone for joining us on this discussion. And Jai Shri Ram to all our guests.